morning, Good ma'am. morning, ma'am. How are you, ma'am? Ma'am, I'm fine. Actually, I want to enroll my child for your school. Okay. My What? child is 2 years old. Okay. The age of your child is 2 years. So 2 years is the best for playgroup admission because as per NEP, we have the age group slot as given by the NEP. 2 year to 3 years is for playgroup. 3 to 4 is for nursery. 4 to 5 is for junior, and 5 to 6 is for senior KG. And 6 above will go to class 1 formal school. So we'll go for the playgroup admission of your child. Great. Ma'am, do you require Aadhaar card? No, Aadhaar card is not required this time. Aadhaar card is basically required in class 1 when APAR ID is generated by the formal school itself. So when you will enroll for class 1 in the formal school, they will ask you for the Aadhaar card. I am not asking you for the Aadhaar card. I only want municipal corporation birth certificate from your side. Ma'am, what are the security standards or procedures? See, security standard, if you say in any preschool, you will be finding CCTV cameras. We have 16 cameras around in our school also. And second security standard, what we take is कि जब वैन में बच्चा जाता है हमारा, तो वैन के साथ we always accompany a nanny from our school. That nanny will help your child for the pick and drop from home itself, home to school, school to home. The nanny will be going and coming. And apart from it, we have a consent form from the parent and the school and the van driver जो ये बताता है कि we all are responsible for everything regarding the child. Ma'am, how many students do Apart you? from it, ma'am, security standard, I would also like to mention that we have a fire extinguisher also involved. फायर एक्सटिंग्विशर्स भी हैं हमारे यहाँ जो फायर सिक्योरिटीज के लिए बेसिकली हमें लगाना है. इट्स अ प्रोटोकॉल, वी हैव टू डू दैट ऑल्सो. एंड अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट लेटर. कोड ऑफ कंडक्ट लेटर हमारा इसलिए बनता है कि हमने हर टीचर्स को और हर हेल्पर्स को ये बता दिया है कि अगर स्कूल में कोई भी ऐसी चीज होती है विच इज अगेंस्ट द चाइल्ड, विच इज अगेंस्ट द चाइल्ड अब्यूज थिंग्स, तो वो हमें बताएं, मैनेजमेंट को बताएं, इन्फॉर्म करें कि दिस शुड नॉट बी हैपन विद द चाइल्ड. एंड इसके अलावा हम आई केयर सेशंस भी लेते हैं अपने टीचर्स के साथ. हम उन्हें ये बताते हैं कि आई केयर चाइल्ड अब्यूज को रोकने के लिए हमें करना पड़ता है. इसके अलावा हम पुलिस वेरिफिकेशन भी अपने पूरे स्टाफ का कराते हैं. तो दीज आर द सिक्योरिटी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स इन आवर स्कूल. Ma'am, how many students do you accommodate in one particular class? In one particular class, ma'am, we have a kidsy criteria 15 is to 1 is to 1. 15 means 15 बच्चे, one helper and one teacher. तो उस 15 बच्चों के लिए दैट नैनी विल बी रिस्पॉन्सिबल कि वो उसको वॉशरूम यूज करा दे, वो उसको खाना खिला दे, उसकी हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करे. अगर बच्चा इन एनी केस रोता है तो उसको हेल्प आउट करेगी उस चीज को सूट करने की. दैट टीचर एंड the nanny will be responsible for that particular class. So 15 is to 1 is to 1. Ma'am, actually, my child doesn't eat at all at home. So, how will you help my child with the food Of habits? course, I told you ना कि जो नैनी हमारे पास है 15:1, तो the teacher and the nanny will help that child to eat properly by themselves. और apart from it, बच्चा जब सबके साथ socially बैठता है तो जब everyone is eating, the child will also be eating. But it will take time. I am not saying the child will eat from tomorrow itself. It will take 1 week or 15 days at least कि वो खुद से feed करने लगेगा. Apart from it, I would like to place a request to the parent also and you also itself कि हमें अपने बच्चे के पोर्शन को समझना होगा कि मेरे बच्चे का खाने का पोर्शन कितना है. मेरा बच्चा एक रोटी खाता है और हम दे देते हैं कि अरे स्कूल जा रहा है तो 4 रोटी दे दे. दिस इज नॉट डन. पोर्शन दैट पेरेंट शुड डिसाइड कि मेरे बच्चे का पोर्शन कितना होना चाहिए. Ma'am, do you teach writing also in playgroup? नहीं मैम, प्ले ग्रुप में बेसिकली वी हैव ओरल्स, है ना. वी हैव अ रिकॉग्निशन पार्ट. हम A to Z तक का रिकॉग्निशन लेते हैं. 1 to 10 वी हैव अ रिकॉग्निशन एंड वी हैव लॉट ऑफ ओरल्स, बहुत सारे ओरल्स एंड लॉट ऑफ राइम्स. एंड दीज राइम्स आर ऑल डन ओरली. Apart from you are saying that writing part we take in the month of January, February and March. उसमें भी we only do with a pencil gripping, नॉट मोर देन दैट. बिकॉज यू नो मैम, अगर हम पेंसिल को भी एक अर्ली एज में दे देते हैं ना तो बच्चे का फाइन मोटर स्किल जो है वो वीक हो जाता है. एंड दैट वी कैन नॉट डू विद अ चाइल्ड फिंगर. आगे चल के उसकी हैंड राइटिंग प्रॉब्लम करती है अगर हम बहुत जल्दी उसको पेंसिल्स दे देते हैं तो. Ma'am, what is the difference between fine and motor skill? Because I don't know anything about that. हाँ, सो मैम, फाइन मोटर स्किल इज एंड ग्रॉस मोटर स्किल बेसिकली हमारे जो ब्रेन्स हैं, दिस इज अ ब्रेन, है ना. इस ब्रेन में 10 पार्ट्स होते हैं.
वी हैव सीन राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन होता है, ये आपको पता है. Yes. राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में भी 10 पार्ट्स होते हैं. 10 फिंगर्स मीन्स 10 पार्ट्स. अब जो थर्ड पार्ट होता है फिंगर का, दैट इज फाइन एंड ग्रॉस. फाइन एंड ग्रॉस जो है हमारे ब्रेन में ही होता है. हर बच्चे को फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल कराने की जरूरत क्यों पड़ती है? फाइन इज बेसिकली रिलेटेड टू हैंड. जब भी कोई काम हम हाथ से करते हैं तो वो फाइन मोटर स्किल है. तो बच्चे को हम क्ले कराते हैं, हम डो कराते हैं, हम सीजर कटिंग कराते हैं, हम थम्स प्रिंटिंग कराते हैं, हम उसको जो है पेस्टिंग कराते हैं. उससे उसका फाइन डेवलप होता है. जब वो फाइन डेवलप हो जाता है 9 मंथ में, तब हम उसको जो है पेंसिल देते हैं. पेंसिल देते हैं तो अब जब वो ग्रिपिंग करता है तो उसकी ग्रिपिंग प्रॉपर होती है. तो दिस इज फाइन, फाइन डेवलपमेंट. देन ग्रॉस मोटर स्किल बेसिकली पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है. तो उसमें हम बच्चे को जो है डांसेस देते हैं, हम बच्चे को राइम देते हैं, हम बच्चे को स्पोर्ट्स देते हैं. प्ले ग्रुप्स में बेसिकली हम स्पोर्ट्स का एक टाइम अलॉट करते हैं. वो इसलिए किया जाता है कि बच्चे का ग्रॉस मोटर डेवलप हो, क्योंकि ये जो फाइन और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है ये ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो फाइन इज बेसिकली हैंड डेवलपमेंट एंड ग्रॉस इज बेसिकली द बॉडी डेवलपमेंट. Anything else, ma'am?